آپ اپنے سسر اور ساس کے بارے میں بتائیں. میں اپنے ساس اور سسر کے بارے میں بتاؤں. میرا سسر بہت اچھا, بہت غریب, بہت شریف انسان تھا. اس نے میرے ساتھ کبھی اونچی نیچے پہ نہیں کیا, ہمیشہ عزت سے بات کرتا تھا. اگر میری ساس جو تھی ذرا بہت طبیعت کی تیز تھی. اس نے میرے ساتھ کچھ تو نہیں کیا مگر بھائی وہی تیز تھی, اور اس نے اتنی روب تھی اپنے بیٹے کے ساتھ اور اپنے ساتھ کہ اپنے میاں کے اوپر جو ہر ایک بات اس کا چلتا تھا, جیسے وہ بولتی تھی ویسے کرتے تھے. حکمرانی آپ کے گھر کا میر امان اللہ وہی تھا. میر امان اللہ خان وہی تھا. بیٹا بھی اس کو مانتا تھا, میاں بھی مانتا تھا. تو ان کے سامنے میں کچھ نہیں کر سکتی تھی. میرا سسر بہت اچھا تھا, میرے دیور بھی بہت اچھا تھا. دیور بچے بھی بہت اچھے ہیں. پہچانتا ہوگا ڈاکٹر نور الدین دیور. ہاں. تو مجھے ایک بات بتائیں, ہم یہ جب بہو اچھی ہے, میاں بھی اس کا ساس سسر بھی اچھا ہے, تو عورت پہ پریشر تو ہوگا نا کہ میں یہ تیزی تھوڑی کم کروں. کیا کام کروں؟ تیزی کم کروں, ڈکٹیٹرشپ کم کروں. بس وہ گھر چلاتی تھی, خرچ اس کا ہاتھ میں تو تھا. جیسے وہ پکاتی تھی وہ کھاتے تھے, جیسے دیتی تھی وہ کرتے تھے. ایسے اہمیت نہیں تھی ہم کو اس کے ساتھ کچھ بحث کرے یا کچھ نہیں. کبھی سوچا ہے وہ اس قسم کی تیز طبیعت کیوں تھی؟ وہ ساری حکمرانی اس کے اپنے میاں کے اوپر, اپنے بچوں کے اوپر حکمرانی. نہیں, وہ کیوں؟ کیونکہ سندھ میں رواج تو نہیں تھا نا عورت کی حکمرانی کا. تو آپ کی ساس کیوں حکمران ہو گئی؟ اب پھر بچوں کو اس نے پڑھایا, بیٹوں کو پڑھا دیا, بیٹے کو پڑھا دیا. سب کچھ خود کرتا تھا. کالج بھی خود جاتا تھا, علی گڑھ یونیورسٹی پہ لڑکیوں کو لے جاتا تھا. سب کچھ خود کرتا. میاں کو کچھ نہیں. میاں کا مطلب علی گڑھ یونیورسٹی کون گیا؟ میرے نندے ولید کی پھوپھیاں. ولید کی پھوپھیاں خود لے کے جاتی تھی اس زمانے میں. تو وہ پڑھائی کے بارے میں پازیٹیو تھی. ہاں, دیکھا پھر بیٹیوں کو بھی اس نے علی گڑھ یونیورسٹی پہ لے کے گیا, اپنے بیٹے کو لے گیا. مگر میرے میاں جو تھا پڑھائی کا کوئی خاص توجہ نہیں تھا. ایگریکلچر کر لیا اس نے, کوئی خاص کام نہیں. تو زمینیں تھی ان کی, اپنے زمینیں چلاتے تھے. تو آپ کی ساس تعلیم اور دینے میں, پڑھانے میں, تعلیم خود کو تعلیم نہیں تھا. اچھا, خود کو تعلیم بالکل نہیں تھا. وہ اسکول بھی تھا اس کا حیدرآباد میں. اس کا اپنا ایک اسکول اس نے بنائی تھی. اسکول بنایا تھا. اسکول میں ٹیچریں بھی چلتے تھے, بچے بھی آ کے لڑکیاں پڑھتی تھی, مگر خود پڑھی لکھی نہیں تھی. اور اس کا ایک اسپتال بھی اس نے کیا تھا, اور اپنے آپ کو ہمیشہ ڈاکٹر سمجھتی تھی. مڈ وائف تھی. اچھا, وہ مڈ وائف کہاں سے پڑھی؟ دلی سے. تو وہ اپنے آپ کو ڈاکٹر بھی سمجھتی تھی, اپنے آپ کو سب کچھ سمجھتی تھی. نہیں, مڈ وائف تو خیر آج بھی کچھ ہیں جو ڈاکٹر کہتی ہیں. آپ کی ساس نے کہا تو کیا ہوا؟ مڈ وائف تھی. ایک اور بات بتائیں, ڈیلیوری وغیرہ جا کے کرتی تھی. لندن میں, امریکہ میں پہلا گائنی کے سارے کام مڈ وائف کرتی ہے نا, ڈاکٹر بعد میں آتا ہے. ابھی آج کل مڈ وائف اتنی بڑی چیز ہے. مجھے ایک بات بتائیں, یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی تعلیم اپنی نہیں ہو تو اس کے ذہن میں یہ ہو کہ چلو میں نہیں پڑھی تو اسکول کھول دوں, اسکول کھولا, اس کا خیال ہو کہ میں ڈاکٹر بنوں, یہ نہ ہو تو پھر اسپتال کھول دیا. یہ ہو سکتا ہے. ہاں, ہے بہت ہوشیار عورت. ہاں, پڑھی لکھی نہیں تھی. اچھا, مگر تھی بہت زیادہ ہوشیار عورت. چالاک تھی یا ہوشیار تھی؟ بہت ہوشیار تھی, چالاک بھی تھی, بہت ہوشیار بھی تھی. اچھا, تو دلی کا کیسے واسطہ پڑا علی گڑھ میں پڑھانا, یہ وہ اس کا کیا پس منظر ہے؟ میرا دیور جو تھا, بڑا دیور, اس کو وہ بھی کوئی پڑھنے کے شوقین نہیں تھا. وہ اس کو بھی جا کے اپنے بیٹے کو دلی میں داخل کر دیا ہے. وہ حکیم جو بولتے نا, وہ ادھر لگا دیا. خود ادھر رہتی تھی, بیٹی کو بھی ادھر لگا دیا. خود بھی ادھر پڑھ لی, خود بھی پڑھ لی ادھر, اپنی بیٹی کو بھی ادھر پڑھا دیا. اس وقت
रहती थी दोस्तों में। उस ज़माने में मुझे नहीं पता, मैं तो काबुल में होते थे, कैसे पढ़ाया क्या क्या। मेरा देवर हकीम था, हकीम डॉक्टर, अपने आप को डॉक्टर बोलता था, आगे हिकमत ज़्यादा, उस बेटी को भी डॉक्टर बना दिया, खुद भी डॉक्टर बना, सब के सब डॉक्टर थे, मगर असल डॉक्टर थे नहीं। असल जो डॉक्टर होती MBBS नहीं, MBBS नहीं था, MBBS कोई भी नहीं था, सब इधर उधर के थे, मुझे आपको डॉक्टर बोलते थे। अच्छा, तो आपकी सास ने मतलब सिर्फ तबीयत की तेज़ी है, बाकी तालीम के मामले में, ख़वातीन को आगे बढ़ाने के मामले में वो अच्छी थी, ठीक थी? हाँ, जैसे पाकिस्तान बनता, जैसे फातिमा जिन्ना आई, तकरीर है या ये है, स्टेज पे फातिमा जिन्ना के साथ बैठी रहती थी। अच्छा, हाँ, तकरीरें करती थी, बोलते सब कुछ करती थी, मगर पढ़ी लिखी नहीं थी। तो उनका नाम क्या था? फातिमा, वो भी फातिमा थी। अच्छा, और हिंदू नाम था नंदिनी? नंदिनी। वो आपको कैसे पता लगा? नंदिनी। नंदिनी बदली थी, आपको किताब पढ़ा? हाँ, वो पढ़ी लिखी भी कम है, लेकिन जब उसको मौका मिला तो वो उसने दिल्ली में मिडवाइफ का कोर्स भी किया, बेटे को भी पढ़ा दिया, बेटे को भी पढ़ाया और बेटी को पढ़ाया, वो भी मिडवाइफ, बेटी भी मिडवाइफ हुई, ठीक है ना। फिर पॉलिटिक्स में वो भी देखे तो ख़वातीन के बारे में, हाँ, फातिमा जिन्ना का मतलब है अयूब खान के खिलाफ। हाँ हाँ, जब पाकिस्तान बनता था ना, जो कायद आज़म नहीं आता, हाँ, कायद आज़म के साथ फातिमा जिन्ना तो होती थी। तो ये भी होती थी। अच्छा, आप मुझे अभी तक समझ में नहीं आती कि उसने इतनी होशियार औरत, इतनी पढ़ी, इतनी लिखी, इतनी मतलब के करके, और जो मुझे अपने बेटे के लिए क्यों कबूल किया, जो मैं बिल्कुल खामोश तबीयत की थी ना, बहुत ज़्यादा भी नहीं करती थी। नहीं तो आप पहले रिश्तेदार थे आपस में? आपकी शादी से पहले आप रिश्तेदार थे? मैं रिश्तेदार थे, हम लोग काबुल में थे ना, मैंने आपको बता दिया। नहीं, इस फैमिली के साथ आपका रिश्ता है था? रिश्ता है। अच्छा, मेरे बाबा का रिश्ता था ना। तो उन्होंने अपने बेटे के लिए, तो आपको अगर ज़िंदगी में कोई बड़ी हैरानगी है वो ये है कि इस खातून ने अपने बेटे के लिए क्यों कबूल किया? तो कबूल भी उसी ने किया। अच्छा, भी उसने, सब कुछ उसने किया, सब कुछ। क्या पता उसको एक ऐसा आदमी चाहिए था जिस पे वो अपना डिक्टेटरशिप चला सके, रोब बिठाना था उसको, रोब चलाना था। कोई और चालाक होता था तो शायद नहीं कर मुकाबला करता। अम्मा, आपकी शादी किस दौर में हुई? 54 में। 54 में। आपकी उम्र क्या थी? 25-6। अच्छा, शादी हैदराबाद में हुई? हैदराबाद, सिविल सर्जन के बंगले में। अच्छा, मेरे बाबा सिविल अस्पताल में काम करते थे। अच्छा, अब आप जो काबुल से वापस आए वो क्या सन है? 49, पाकिस्तान के 2 साल बाद आपको वहाँ से निकाला गया। पाकिस्तान, अंग्रेज ने कहा भाई इनको निकालो, ये हमारे खिलाफ है, यही है ना? फिर आप टर्की गए? पाकिस्तान आ गए सीधा कराची। पाकिस्तान बन गया, आप सीधा इधर आए? कराची आ गए। कराची में 3 साल मेरे बाबा उसमें काम करते थे, CMH में, मिलिट्री अस्पताल में। फिर वहाँ से ख़त्म हो गए, 3 साल कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया, फिर हैदराबाद गए। हैदराबाद 3 साल। तो CMH में कॉन्ट्रैक्ट आते साथ मिल गया? मिल गया, बस उन्होंने काबुल से बंदोबस्त हुआ था ना। अच्छा, तो काबुल में मेरे बाबा जो थे, जो ये एम्बेसडर वगैरह, चुंदरीगर, उस ज़माने में चुंदरीगर था एम्बेसडर, चुंदरीगर वगैरह थे, उन्होंने बंदोबस्त किया था मेरे बाबा के लिए इधर जॉब के लिए। चुंदरीगर तो एक वजीर आजम भी रहे ना? वजीर आजम भी रहा। और मेरे बाबा को बहुत दोस्त था। अच्छा, पाकिस्तान से पहले का कराची और हैदराबाद
تو بعد میں یہ جو ہندوستان سے لوگ آئے، کراچی یاد ہے مجھے، کراچی بہت خوبصورت شہر ہوتا، کراچی بہت صاف ستھرا شہر تھا، کراچی کے راستے رات کو دل جاتے تھے، کراچی بہت خوبصورت شہر تھا، ٹرین چلتے تھے، بسیں چلتی تھیں، ہم لوگ واک کرتے تھے. اب یہ الفی بولتے ہیں ادھر، ہم لوگ رات کو شام کو واک زیب النساء جو ہے، زیب النساء تھی، ہم لوگ واک کرتے تھے. ابھی دیکھو کیا ہے، بہت خوبصورت تھا. حیدرآباد بھی ایسا، حیدرآباد بھی بہت خوبصورت تھا، بہت صاف ستھرا تھا. لوگ بہت زیادہ ہو گئے. اچھا پہلے حکومتیں کام کرتی تھی، اب نہیں کرتی، لوگ اس طرح بھی کہتے ہیں. نہیں کرتی، ابھی حکومتیں تو کام نہیں کرتی، اپنے میں لگے پڑے ہیں. ایک بات بتائیں، جو آپ کے والد تھے نور محمد، ان کا پیشہ ہو گیا ڈاکٹری، اور پھر وہ سیاست میں ہو گئے انگریز کے خلاف. ڈاکٹر اس کا پیشہ تھا، مگر اس کے دماغ میں سیاست تھا. اچھا، اس کے دماغ میں سیاست تھا. اس کی ڈاکٹری تھی، شوق سے نہیں کرتا، جو سیاست اس کے دماغ میں تھا. اگر کابل میں نہ کرتا، اگر پاکستان بنا تو بنا ایسے، کیا خوشیاں، کیا یہ وہ پریزیڈنٹ بنا پاکستان کلب کا، ادھر جاتا تھا، تقریریں کرتا تھا پاکستان. تو ان لوگوں نے دیکھا کہ ایسے کرنے اس کو نکل جائے، نہ کرتا تو شاید نہ نکلتا. ابھی تو جب میں کیا ہو گیا، میرا ملک آزاد ہو گیا، میں اتنا قربانی دے سکتا ہوں، اپنے ملک کے لیے میں قربانی دے سکتا ہوں. وہ پاکستان بننے پہ اتنا خوش تھا، اور کابل میں کیا کیا، جشن کیا. جشن کرتا تھا، بہت کرتا. جب ہم لوگ واپس آ گئے طورخم بارڈر میں، میرے بابا کھڑے ہو کے نماز پڑھا. میری ماں نے پوچھا کہ کون سا ٹائم ہے نماز پڑھنے کا، آپ نماز پڑھے تھے زمین پہ. اب سر زمین میں پہنچ گیا، پھر مٹی میں پہنچ گیا. میں اپنی مٹی کو میں نے آزاد دیکھا ہے، میں نے سجدہ کیا اپنے مٹی کو. تو میرے ماں نے بولا ختم کر کے، اپنی زندگی ختم کر کے اپنی مٹی کو. میرے ماں سے خلاف تھا نکلنے کا، خوش نہیں تھی. نہیں، آپ کی ماں کیا تھی؟ مگر جب پاکستان آ گیا، میرے بابا آیا پاکستان، 1-2 مہینہ میرے بابا کو پھر میرے بابا نے سمجھا، دماغ میں آیا جو کچھ میں نے کیا غلط کام کیا. کون سا؟ جو پاکستان کے خاطر جو میں وہاں کابل میں جو کام کیا، میں نے غلط کام کر دیا. سمجھ گیا. ادھر آنا نے کوئی پوچھا بھی نہیں، پوچھا بھی. کسی نے نہیں پوچھا اس کو. اتنی نوکری تھی، چکری تھی، زندگی سب کچھ ختم کر کے آیا. ادھر پاکستان میں کسی نے نہیں پوچھا، بس وہی نوکری 3 سال کا کانٹریکٹ دے دیا، اس کو سا ختم کیا. کئی بار لیاقت کو اس نے لکھا کہ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں، ملا نہیں. تو میرے بابا کو محسوس ہو گیا کہ میں نے غلط کام کیا. اس کا کبھی اظہار کیا؟ ہاں بولتا تھا، میں کچھ نہیں بولتا تھا، مگر اس کے دماغ میں آ گیا کہ یہ جو کچھ میں نے کیا غلط کام کیا. شاید نہ کرتا، شاید کابل نہ چھوڑ دیتا. اماں کچھ یاد ہے جب آپ نے پہلی دفعہ فارسی کے لیے پڑھا ہوگا، اور آپ کو ٹیوشن کے لیے گھر میں ٹیچر آ کے پڑھاتا ہوگا، اور آپ کی زبان سندھی اور اردو ہے. جب کابل گئی 3 سال کی، تو مجھے کچھ یاد نہیں ہے. جب میں نے شروع کر دیا بات کرنا، فارسی بات کرنا شروع کر دیا. نوکر ہوتے تھے، ان کے ساتھ فارسی بات شروع کر دیا. ٹیچر آتا تھا، 2 ٹیچر آتے، ایک صبح کو آتا تھا، ایک شام کو آتا تھا. پڑھتی تھی. ظلم کی پڑوس کے جو تھے کابلی لوگ پڑوس میں تھے، وہاں بھی ہم کو جانے، چھوٹی تھی جاتی تھی ان کے گھروں میں. جب ذرا بڑی ہو گئی تو جانے سے منع کر دیا، وہ تو بھی نہیں جایا کرتی تھی. یہ جو کابل میں آپ رہے، حیدرآباد میں رہے، کراچی میں رہے، پھر ٹرکی میں رہے، لندن ترکی بھی نہیں گئے. کابل اور پاکستان بس کابل پھر گئی ہوں کابل میں. ہاں. اور پھر میرے بچے جو پیدا ہو گئے تھے، پھر میں گھومنے کے لیے گئی تھی. کیا فرق تھا؟ بہت فرق آ گیا، مجھے بہت فرق دیکھا کابل میں. ہاں. بہت فرق دیکھا. وہاں کے جو عورتیں برقع پہن کے پھرتی تھی، وہاں میں نے عورتوں کو سائیکل چلاتی ہوئے دیکھا، وہ بسوں میں بیٹھ کے دیکھا. برقع ختم ہو چکا تھا، بالکل آزاد تھے. بہت اچھا ہوا تھا. بڑے راستے بنے تھے، بڑی بلڈنگیں بنی تھی.
मैंने काबुल में बहुत फर्क देखा। कौन से दौर में गई? मैं गई हूँ 67 में। 67 ये सरदार दाऊद, अभी तक ज़ाहिर शाह बादशाह था। ज़ाहिर शाह का आखिरी दौर था, फिर आखिर- दाऊद आ गया। दाऊद आ गया। उसके बाद आप काबुल नहीं गई? नहीं, फिर नहीं। अभी आपने शादी कर ली, आपके बच्चे हुए 5, 3 बेटे 2 बेटे हैं। 2 बेटियां। अब पहले क्या पैदा हुआ? मेरा वहीद, मेरा बड़ा बेटा, वहीद। फिर ये, हाँ फिर तीसरी मेरी बेटी है। हाँ, उसका नाम क्या है? आयजा जो आई जिसकी माँ। आयजा की माँ। हाँ। हाँ, फिर शमसुद्दीन, आयजा की माँ का नाम क्या है? नाहिद। नाहिद। हाँ। फिर शमसुद्दीन, हम्म। फिर छोटी मेरी नादिया, वो डॉक्टर है अमेरिका में। और ये 5 जो बच्चे हैं, तो उस जमाने में ये प्लानिंग तो नहीं होगी ना, बच्चे 2 हो, 5 हो, 4 हो? हाँ, बड़े बराबर में नहीं था ना। नहीं। आपके जो बच्चे हुए तो आपको ये इनके बचपन से इल्म था कि कौन ज़्यादा शरारती है? बच्चों को क्या शरारती, कोई शरारत। मेरे बच्चे अच्छे थे, कोई शरारत नहीं। नहीं, बच्चे तो अच्छे होते हैं, लेकिन आपको कुछ बच्चे खाना खाने में लेट करते हैं, देर करते हैं, माँ बाप को तंग करते हैं। बच्चे तो तंग करते हैं ना? तो करते हैं वो उन करते इन हैं। पांचों में से कौन ज़्यादा? मैंने कोई खास तंग नहीं किया, नहीं। किसी ने खास तंग किया। अच्छा, इन 5 बच्चों का ख्याल माँ ज़्यादा रखती थी या बाप? मैं आप। अच्छा, तो अभी सास की हुकूमत बहू की तरफ आ गई थी। हाँ, मेरे बच्चों को मैं ख्याल रखती थी। उनका बाप नहीं रखता था? मैं रखता था, मैं इतने ज़्यादा नहीं। क्यों? अपना काम जाता था, आता था, बस आता वो खास नहीं, मैं पूछ रहा हूँ वो करता था, कभी नहीं, कैसे नहीं करता था। एडमिशन लेना ही करना, कॉलेज में जाना, बाहर का काम। तो करता था, मगर ज़्यादा मैं सोचती थी इनके बारे में। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, आप अगर ये बच्चों के बारे में न सोचती तो इस तरह होते क्या होते, जैसे आज है? जितना शुक्र करूँ कम है। मेरे बच्चे माशाल्लाह माशाल्लाह नज़र न लगे, ठीक ठाक अपने घरों में बैठे हैं। मगर जो अपने घरों में खुश बैठे हैं, अपने घरों में खुश बैठे हैं। अब इनके बच्चों की भी शादी हो रही है, इनके पोते भी हो रहे हैं। तो अम्मा, जो पहली बेटी है उसको भी आपने पढ़ाया, तो उस वक्त लड़कियों की पढ़ाई पे बंदिशें नहीं थी? नए बंदिश हैदराबाद की वजह से शायद किसी गांव LMC में पढ़े थे। LMC में पढ़े। तो आपके 3 बच्चे LMC में पढ़े? मतलब वो जो नीचे नादिया, फिर नाहिद और ये वलीद LMC के हैं। LMC के। वो बड़ा मेरा बेटा इंजीनियरिंग कर दे लाहौर से, हाँ, और शमसुद्दीन NED में, NED कॉलेज में 2 इंजीनियर हुए, 2 इंजीनियर, 3 डॉक्टर। तो वैसे आपके घर में इंजीनियरिंग की इज्जत ज़्यादा है या डॉक्टरी की? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, दोनों अच्छे हैं। अच्छे हैं। ठीक ठाक हैं। हाँ। अच्छा, अभी मुझे आप बताएं, आपके सबसे जो पहला बच्चा है, जो आपकी बेटी है, उसकी खूबियाँ क्या हैं? कौन सी बेटी? जो पहला बच्चा है, पहला बेटा डॉक्टर है ना, बड़ा बेटा मेरा इंजीनियर है ना, इंजीनियर है। वहीद। अभी उधर सऊदी अरब में काम करता था। ठीक है, अभी आ गया, रिटायर करके आ गया है। आ गया। उसकी मुझे प्रॉपर्टीज, क्वालिटीज, मेरिट्स बताएं। वहीद की क्या बताऊँ, अच्छा ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अपना पढ़ाई उसने कर लिया, फिर नौकरी अच्छी खासी कर ली, फिर जॉब कर लिया, फिर रिटायर हो गया। उसके 2 बच्चे हैं, दोनों अमेरिका में हैं। लड़की भी शादीशुदा है, लड़का ने अभी शादी नहीं किया है। ठीक, अभी घर बनाया, अभी क्या है, आजकल तो कर पाकिस्तान में रहता है, कभी जाता है अमेरिका, कभी पाकिस्तान में रहता है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, खुश है, ठीक है, ठीक है। उसकी तबीयत कैसी है? बहुत अच्छा है। मिजाज उसका? मिजाज बहुत अच्छा है, मेरी बहुत इज्जत करता है, मेरे बहुत ख्याल रखता है। सब ख्याल रखते हैं, ऐसे नहीं कि वो करता है। नहीं, वो ठीक है। वो ज्यादा रखता है। नंबर वार हम आते हैं ना। हाँ। अभी दूसरा आपका बच्चा? वलीद, हाँ,
हाजी साहब के बारे में बताएं। वलीद अपना पढ़ाई पूरा कर लिया, डॉक्टर है इंशाल्लाह, बीवी भी डॉक्टर है। और माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है, इसके 3 बच्चे हैं। एक बेटी की शादी हो गई है, बाकी 2 बच्चे अभी तक शादी नहीं हुई है। बेटी भी डॉक्टर हो गई इसकी, बेटा भी पढ़ रहा है। अम्मा ये जो 3 बेटे हैं, ये तीनों मिला के ज़्यादा शरारती थे बचपन में या दोनों बेटियां शरारती थी? बेटा शरारती नहीं थी। नहीं थी, बेटे थे। बेटे भी शरारती। वलीद जरा तंग करता था मुझे, हाँ। अपना पढ़ाई नहीं करता था। शुरू में पढ़ाई फिर ठीक हो गया, फिर ये पॉलिटिक्स में लग गया था। नहीं शुक्र कोई ख़ास तंग नहीं किया है लोगों ने मुझे। तो ये वलीद आपको 3 बच्चों में से वलीद से क्या वो सियासत में जो आया तो कुछ डर लगा आपको? हाँ डर लगा था। अच्छा। मुझे डर लगता था, मुझे डर लगा, इसी वजह से मैं काफ़ी परेशान रहती थी इसके वजह से। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इसके नूर हो गया, चला गया अमेरिका, बस जान छोड़ी। जान से अमेरिका चला गया सियासत। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि आदमी अपने मुल्क में या उसके वालिदैन भी कहते हैं कि यहाँ से चला जाए, क्योंकि वहाँ इस तरह के हालात नहीं होंगे। ऐसा है ना? क्या कभी कभी आदमी इस तरह सोचता है कि अपने मुल्क से मेरा बच्चा चला जाए, क्योंकि जहाँ जा रहा है वहाँ ऐसे हालात नहीं है। हाँ, तो इसने इतना तो तंग किया होगा ना कि आपने कहा यहाँ से चला जाए। नहीं इतना तंग नहीं किया था, बाद में काम करता था अपना, बस फिर छोड़ दिया। फिर पॉलिटिक्स, फिर इसका पढ़ाई का ख्याल हो गया। बाप ने बोला इसका अमेरिका भेजना चाहते, इम्तिहान दे दे। वहाँ जाके गया, पढ़ा, इम्तिहान दे दिया, पास हो गया। माशाल्लाह माशाल्लाह डॉक्टर है, उसकी बीवी भी डॉक्टर है। उसकी ज़िंदगी अच्छी खासी चल रही है। इसका रिश्ता आपने किया? नहीं खुद कर दिया, खुद किया। कैसे? लेकिन सब उसकी दोस्ती हो गई, इसलिए रिश्ता कर दिया। हाँ, बताया मुझे, हमको हमने कबूल कर लिया, ठीक है। और वहीद? वही भी मेरे भाई की बेटी है। आपकी भतीजी है वो। और अपना तीसरा शम्स साहब? वो भी अरेंज मैरिज है। अच्छा। बेटियों को भी इंसान को क्या होना चाहिए? जो मैंने अपनी ज़िंदगी गुजार दी, जो कुछ हो गया, मैं उससे शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह ने मुझे बहुत अच्छी ज़िंदगी दे दी, मैंने ज़िंदगी बहुत अच्छी तरह से गुजार दी। अब सिर्फ अल्लाह से दुआ है कि मेरे आखिर भी अच्छा हो जाए, बस तसाखत। मैंने अपनी ज़िंदगी अच्छी गुजार दी है, मुझे अपनी ज़िंदगी से कोई शिकायत नहीं है। आज के जो नौजवान लोग हैं, आपके बच्चे, बेटे, नवासे, बेटी, बेटों के बेटे, उनको अगर आप बैठ के कोई बात करना चाहें, क्या करेंगी? नौजवान नस्ल को क्या कहेंगी आप? मैं क्या कहूँगी? कुछ भी नहीं कहूँगी। जो जाके करते हैं जाके करें। तालीम के बारे में क्या तालीम, सब तालीम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। कोई ऐसे नहीं जो नहीं पढ़ता है, सब पढ़ते हैं। सब अभी ज़माना तब्दील हो गया है। तब्दील हो गया बहुत। अम्मा, जितना ज़माना तब्दील हो गया है, तालीम बढ़ गया है, हमारे शहर कैसे हैं? वो अच्छे हुए? हाँ, शहर क्यों ख़राब हुए हैं? शहर बहुत ख़राब हो गया, शहर बहुत ख़राब हो गया। आप अब्दुल मजीद सिंधी के बारे में बताएं। देखिए, मैं अब्दुल मजीद सिंधी को मैं ज़्यादा नहीं पहचानती हूँ। मेरे बाबा पहचानते थे, नाम सुना था मैं। मेरे बाबा की दोस्ती थी, बाद में पाकिस्तान से आया तो वहाँ जाता था। उनके घरों में हमारा रिश्तेदार नहीं था, हमारा रिश्तेदार नहीं था। उसकी बीवी मेरे मियाँ के रिश्तों में थी, उसकी बीवी, खुद नहीं। बस मेरे बाबा जाते थे। ये क्यों आता, निकालूँ उसको? मुझे नहीं ज़्यादा उनके बारे में कोई पता नहीं है। और सियासी लीडर सिंधी, अली मोहम्मद राशिदी, GM सैयद? मुझे किसी से नहीं, मुझे नहीं। अली मोहम्मद राशिदी? अली मोहम्मद, उसके मैंने आपको बताया ना, मेरे बाबा की दोस्ती होती थी, मैंने उसकी शक्ल देखा भी नहीं है। अच्छा, ये आंटी खदीजा के जो वालिद थे, उमर बिन दाऊद पोटो,
ان سے آپ کی بات چیت ہوتی تھی؟ मेरी नंद का मियाँ था हाँ। पोटा। हाँ। कैसे शख्स थे वो? अच्छा, हाँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और उसकी फैमिली के कौन से बड़े लोग? बस अब फैमिली तकरीबन मर गए, सब खत्म हो गए, कोई भी नहीं बचा। कौन बचा? उसकी बेटियां भी चली गई है। हाँ। बाकी एक ही बेटा अपा खदीजा का बेटा है, बस और कुछ नहीं। दो बेटा भी चला गया, अजीम दाऊद पोटा, वो भी चला गया। हाँ। कोई बचे नहीं, सब मर गए, चले गए। तो उसमें अम्मा ये उनकी फैमिली में तालीम का जो रुझान है वो कैसे पैदा हुआ होगा? माँ अभी बाप आप ऐसे बातें पूछते हैं जो मैंने इनसे कोई वास्ता नहीं है, मैंने कभी इनको देखा भी नहीं, कभी मिला। मैं आपसे इसीलिए पूछ रहा हूँ उस ज़माने के बारे में आपको, क्योंकि फैमिलीज़ की बातें आपको ही पता होंगी ना। नहीं, मेरे को खास कोई पता नहीं है। तालीम याफ्ता थे, पढ़े लिखे थे। आपा को उनकी शादी हो गई थी, उसकी बीवी मर चुकी थी, 4 बेटियां थी उसकी, 2 बेटे थे, फिर इससे शादी हो गई थी आपा के साथ। फिर क्या हुआ मुझे को नहीं पता खास कर। अजीम दाऊद पोट्रो जब पढ़ता नहीं था क्या हुआ फिर, वो वाक़या बताएं। पता नहीं था, फेल मेल हो गया था, बस गया था। फिर उसको बाप ने उसको पेट्रोल पंप पे लगाया था। अच्छा। पेट्रोल लगाता था, मोटरों को तेल देता था, पेट्रोल देता भरता था। हाँ, हाँ। भरता था। फिर उसको सज़ा मिल गई थी ये, फिर पढ़ाई ख़त्म किया था। किसी ने उसको समझाया कि जाके फलाना इम्तिहान दे दो, फिर उसने पढ़ा। फिर उसको रूस पे पास हो गया, मतलब उसके स्कॉलरशिप मिल गया। फिर रशिया चला गया, तो वहाँ जाके 3-4 साल ट्रेनिंग करके आ गया। फिर तो अच्छा खासा बड़ा आदमी बन गया था। हाँ। अम्मा मैं फिर किसी और मौके पे आऊँगा, आपकी बड़ी मेहरबानी है कि थैंक यू, अब आ गए, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत बड़ी मेहरबानी। यादें हमें बताई हैं। हाँ हाँ। और मुझे ज़्यादा बातें याद भी नहीं। वलीद ने मुझे बता, वलीद ने आप बोलते थे अगर मुझे बातें याद भी नहीं है। अभी बातें जो बातें पहले की तो भूल भी चुके थे, सब भूल जाता है ना, याद नहीं। नहीं माशाल्लाह आपको सब अभी याद बस, है। हाँ याद है। हाँ, लेकिन अगर आपको कहा जाए कि फ़ारसी में बात करें, आप करेंगी? करूँगी, क्यों ना। अच्छा। अब मेरी बहन की बेटा, मेरी बहन जो नहीं है खुद दुनिया में, उसका बेटा, 3 बेटे हैं, 2 फ्रांस में है, 1 काबुल में है। छोटा वाला काबुल में है। वो 10 दिन 15 दिन मुझे फ़ोन करता है। अच्छा। हाँ, फ़ोन करता, खाला जान, और उसके साथ में बैठ के फ़ारसी बातें करती हूँ, बात करती हूँ। फिर दूसरा एक वो है, ऐसा फ़ारसी में बात करता है। दूसरा हमारा नौकर था काबुल में, वो अमेरिका में है, अमेरिका सिटीज़न हो गए, अमेरिका गए, वहाँ से वो फ़ोन करते हैं, उनके साथ में फ़ारसी बात करती हूँ। अब किसको बात, मेरे भाई थे वो सब चले गए। भला सिंधी में तव्हां ॻाल्हायो? हाँ, सिंधी ॻाल्हाइण थी। हाँ। हाँ, साफ़ नथी ॻाल्हायां, मां ॻाल्हायां थी। अगर ज़रूरत पड़े मुझे घर ऐं पंहिंजो कमु करे न, पर तव्हांजो वालिद, तव्हांजी वालिदा, उहे सभु सिंधी हुआ? सब सिंधी, बिल्कुल सिंधी, पक्का सिंधी। हम लोग पक्का सिंधी है। हाँ। हैदराबाद के रहने वाले फ़कीर, पक्का सिंधी। हमारे बाप दादा नाना वाना सब सिंधी हैं, सिंध के हैं हम लोग, और सब हैदराबाद के हैं। मैं 80 हैदराबाद में आया हूँ। अभी इस सवाल पे हम बात ख़त्म करते हैं हाँ, कि इस सरज़मीन पे अपनी ज़मीन, अपनी ज़िंदगी दोनों में आपने तअस्सुब पाकिस्तान बनने से पहले देखा या बाद में देखा? क्या चीज़ जो इसका उम्मीद था पाकिस्तान से, वो नहीं करता है। पाकिस्तान ने नहीं किया उसके सब। मगर वो पाकिस्तान आने के बाद 7 साल के बाद उसका इंतकाल हो गया, 64 की उम्र में चला गया, तो ज़्यादा तो रहा भी नहीं। फिर भी काबुल गया था, एक बार गया था। कराची में आपने जब स्कूल ज्वाइन किया तो इंटरव्यू के लिए आई आप? मैं इंटरव्यू कराची इसलिए स्कूल ज्वाइन किया, जो मैं घर में बोर होती थी अपने बाप को, मैं जाके मैट्रिक दे दूँ, तो बोला जाके दे दो। जाके मैंने मैट्रिक क्लास में दाखिला ले लिया। क्या एज थी आपकी? आज अच्छी खासी एज थी, 22 की थी। 22 बरस में? मैंने तो ये आप काबुल से वापसी की बात काबुल कर? के 2-4 साल तो घर में ऐसे रहती थी। फिर मैंने कहा चलो मैट्रिक तो कर लूँ कम अज़ कम। मैट्रिक कर लिया तो फिर वहाँ जाओ, वहाँ महाजिर लड़कियों, नया नया पाकिस्तान बना था ना, तो पाकिस्तान बहुत महाजिर लड़कियाँ होती थी। फिर वो मुझसे पूछते थे कि तुम कहाँ की हो,
एकदम फारसी बात करती हूँ ना, वो सिंधी आता है, मैं सिंधी हूँ। अरे अल्लाह, सिंधी तो चोर होते हैं, डाकू होते हैं, अब डाकू है क्या? मैं कहा हाँ मैं डाकू। अगर तुम लोग जब आए थे उस वक्त सिंधी अच्छा था, अभी सिंधी डाकू हो गए हैं। मैं उनके साथ डरती थी। अम्मा वैसे ये उनके अंदर में किसने डाली होगी बात हमारे खिलाफ? सिंधी तो है, डाकू नहीं है। उन्हें डरते थे सिंधी से, सांस बंद जाती थी सिंधी के नाम से। फिर सिंधु से उन्होंने शादी भी तो किया, सिंधी से सब कुछ किया। अम्मा बड़ी मेहरबानी, और मैं फिर कभी हाज़िरी दूंगा, इंशाअल्लाह ताला, मैं अल्लाह खैर आऊँगा, करेगा, आपको बड़ी और मेहरबानी मैं करेगा, कोशिश आपको। करूँगा कोई फ़ारसी बान जो है ना वो ले आऊँ आपसे, वो गपशप करे ना। ठीक है, हाँ ठीक।